دلی کی تہاڑ جیل سے فرار ہونے والے ان سربکف مجاہدوں کی لہو رنگ داستان، جنہوں نے کشمیر کی آزادی کے لیے دشمن کی سرزمین خصوصاً دلی میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کو قدم قدم پر شکست فاش دیتے ہوئے دشمن پر کاری ضربیں لگائیں۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ مجاہدین کے حملوں کے خوف نے ان کی راتوں کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ اب وہ وقت دور نہیں رہا جب یہ لوگ خود بھی ہندوستان کا رخ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، رحمان بابا نے کہا۔ پھر چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بولا، بہرحال یہاں کون کون موجود ہے؟ طارق، علی، ہاشم اور نیلم۔ سعید بھی تھوڑی دیر میں آنے والا ہے، اس شخص نے جواب دیا۔ وہ حاجی عثمان تھا جس نے اپنا حلیہ کسی حد تک تبدیل کر رکھا تھا۔ ٹھیک ہے، اتنے ہی آدمی کافی ہوں گے۔ اب میں جو کہہ رہا ہوں اسے غور سے سنو، رحمان بابا نے کہا، اور پھر انہیں اپنا منصوبہ سمجھانے لگا۔ آخر میں وہ کہہ رہا تھا، عثمان اور ہاشم کھانا کھاتے ہی یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ وہ دریا میں کشتی پر تم لوگوں کے منتظر رہیں گے۔ طارق نیلم کے ساتھ جائے گا اور سعید تمہارے ساتھ جائے گا۔ میں خانقاہ پر تم لوگوں کا انتظار کروں گا۔ ٹھیک ہے، ہم سمجھ گئے، حاجی عثمان نے سر ہلا دیا۔ کچھ ہی دیر بعد ہاشم نے دسترخوان پر کھانا لگا دیا۔ کھانا لگانے سے پہلے سعید بھی پہنچ گیا تھا۔ کھانا ختم ہوتے ہی علی اور سعید مکان سے نکل گئے۔ اس وقت شام کے 8 بجے تھے۔ 11 بجے طارق اور نیلم بھی رخصت ہو گئے، اور پھر حاجی عثمان اور ہاشم بھی رحمان بابا کو خدا حافظ کہہ کر مکان سے چلے گئے۔ طارق نیلم کو لے کر دریائے جہلم کے مشرقی کنارے پر پہنچ گیا۔ دریا کے پل پر فوج کا پہرا تھا۔ انہیں وہاں سے گزرنے کے لیے خاصی دشواری کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن بہرحال وہ کسی نہ کسی طرح پل سے گزرنے میں کامیاب ہو گئے۔ کچھ دور تک وہ بند روڈ پر چلتے رہے، اور پھر وہ بنگلوں کے درمیان کشادہ گلیوں میں گھومتے ہوئے اس سڑک پر آ گئے جہاں ملہوترا کا بنگلہ تھا۔ اس سڑک پر بھی بنگلوں کے درمیان درخت لگے ہوئے تھے۔ طارق نے اکثر بنگلوں کے گیٹوں پر اندر کی طرف مسلح محافظ کھڑے دیکھے تھے۔ اس وقت رات کے 12 بج چکے تھے۔ 12:05 پر وہ سیٹھ ملہوترا کے بنگلے پر پہنچ گئے۔ طارق اخروٹ کے ایک تناور درخت کے پیچھے چھپ گیا، اور نیلم نے گیٹ پر ہولے سے دستک دی۔ انتظار کے بغیر وہ دوبارہ دستک دینے لگی۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے بڑی عجلت میں ہو۔ چند سیکنڈ میں ہی گیٹ کے اوپر سے محافظ نے باہر جھانکا۔ کون ہو تم؟ کیا بات ہے؟ پولیس والے نے پوچھا۔ میں ایک مظلوم کشمیری عورت ہوں، نیلم نے کہتے ہوئے چادر اتار دی۔ گیٹ پر جلنے والے بلب کی روشنی میں اس کا نیم اوریا سینہ صاف نظر آ رہا تھا۔ کچھ گنڈے میرا پیچھا کر رہے ہیں، میں بڑی مشکل سے ان سے بچ کر اس طرف آئی ہوں، میری مدد کرو۔ وہ گنڈے اس طرف پہنچنے ہی والے ہوں گے۔ پولیس والا گیٹ کے اوپر سے گردن اٹھائے نیلم کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سنسان گلی، آدھی رات کا وقت اور جوان و حسین عورت۔ پولیس والے کی آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی۔ اس نے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر گردن اور باہر نکالی اور سڑک پر دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ خدا کے لیے میری مدد کرو، گنڈے اس طرف آنے ہی والے ہوں گے۔ نیلم گگیائی۔ پولیس والے نے بڑی آہستگی سے گیٹ کھول دیا۔ رائفل اس کے کندھے پر لٹکی ہوئی تھی۔ اس نے ایک بار پھر محتاط نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا، اور نیلم کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا، آؤ اندر آ جاؤ، تم ٹھیک جگہ پر آئی ہو، یہاں تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ نیلم اس کے ساتھ گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ پولیس والے کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ شاید وہ سوچ رہا تھا کہ رات آرام سے گزر جائے گی۔ ابھی وہ پولیس والا گیٹ سے ایک قدم دور ہی تھا کہ طارق بڑی آہستگی سے درخت کی آڑ سے نکلا اور بلی کی چال چلتا ہوا پولیس والے کی پشت پر پہنچ گیا۔ اچانک ایک چھوٹا سا پتھر اس کے پیر سے ٹکرایا۔ پتھر کے لڑکنے کی آواز سن کر پولیس والا تیزی سے پیچھے مڑا، لیکن اسے بہت دیر ہو چکی تھی۔ طارق نے بڑی پھرتی سے اچھل کر اسے دبوچ لیا۔ اس کا ایک ہاتھ پولیس والے کے منہ پر جم گیا تھا تاکہ وہ چیخ نہ سکے۔ وہ پولیس والے کو گھسیٹتا ہوا اندر لے گیا۔ نیلم نے جلدی سے گیٹ بند کر دیا۔ طارق پولیس والے کو لے کر گیٹ سے ملحق گارڈ کیبن میں آ گیا۔ پولیس والے کی رائفل نیچے گر گئی تھی، جسے نیلم نے اٹھا لیا۔ کیبن خاصا کشادہ تھا۔ اندر 2 کرسیاں پڑی تھی، اور ایک کونے میں فرش پر چائے کا ایک خالی کپ بھی رکھا ہوا تھا۔ کیبن میں داخل ہو کر نیلم نے رائفل پولیس والے پر تان لی۔ تمہارے ساتھ کھڑی ہوئی یہ حسین عورت بڑی ظالم اور سنگ دل ہے۔ طارق نے پولیس والے کے کان میں سرگوشی کی۔ میں تمہارے منہ سے ہاتھ ہٹا رہا ہوں، لیکن اگر تم نے کوئی معمولی سی آواز بھی نکالی
तो ये हसीना तुम्हारी खोपड़ी उड़ा देगी। नीलम ने ऑटोमेटिक राइफल का सेफ्टी कैच हटा दिया। क्लिक की हल्की सी आवाज पुलिस वाले के दिमाग पर वजनी हथौड़े की ज़रब से कम नहीं थी। उसने बेबस निगाहों से तारिक की तरफ देखते हुए गर्दन को असबात में हरकत देने की कोशिश की। गुड, अक्लमंद हो। तारिक ने यह कहते हुए उसके मुंह से हाथ हटा लिया। और अब जल्दी से अपना यूनिफॉर्म उतार दो। क्या? पुलिस वाला हकला कर रह गया। मैं जो कह रहा हूं वो करो। तारिक के मुंह से गुराहट से निकली। पुलिस वाले ने नीलम की तरफ देखते हुए वर्दी उतारना शुरू कर दी। चंद सेकंड बाद ही उसके जिस्म पर सिर्फ एक जांघिया और बुनियान नजर आ रही थी। तारिक ने उसकी यूनिफॉर्म अपने लिबास के ऊपर ही पहन ली। फिर पुलिस वाले को बांध कर कैबिन में एक तरफ डाल दिया गया। राइफल अब तारिक ने ले ली थी। उसने नीलम को इशारा किया और वो दोनों कैबिन से निकल कर मकान के बरामदे की तरफ चलने लगे। बरामदे में मदम रोशनी का बल्ब जल रहा था। तारिक ने 2-3 मरतबा दरवाजे को होले से खटखटाया। कुछ ही देर बाद अंदर से दरवाजा खुल गया। दरवाजा खोलने वाला वही ड्राइवर था जो सुबह सेठ सुंदर मल्होत्रा को एयरपोर्ट से लेकर आया था। क्या बात है मनोहर, और ये कौन है? ड्राइवर ने तारिक की तरफ देखा, फिर नीलम की तरफ देखने लगा। तारिक ने टोपी पेशानी पर झुका रखी थी, जिसकी वजह से ड्राइवर उसका चेहरा नहीं देख सका था। ये लौंडिया कहीं से भटकती हुई आ गई है। सेठ से कहो। सेठ की ऐसी तैसी, ड्राइवर बोला। हम नामर्द हैं क्या? सेठ सो गया है, इसे मेरे कमरे में ले चलो। लेकिन ये कोई गड़बड़ तो नहीं करेगी? अरे बिल्कुल नहीं, मैंने इसे अच्छी तरह टटोल कर देख लिया है, तारिक ने जवाब दिया। ड्राइवर भी नीलम को टटोल कर देखने लगा। उसकी आंखों में हवस की चमक उभर आई थी। इसे अंदर ले चलो या बाहर ही खड़े रहोगे? तारिक बोला। ओ आओ। ड्राइवर रास्ते से एक तरफ हट गया। तारिक ने नीलम को बाजू से पकड़कर दरवाजे की तरफ धकेला। नीलम खौफजदा होने की बड़ी शानदार अदाकारी कर रही थी। उसके फौरन ही बाद तारिक ने भी अंदर दाखिल होकर नीलम को मजीद आगे धकेल दिया। ठीक उसी लम्हे बाहर हल्के कदमों की आवाज सुनाई दी। ये कौन है? ड्राइवर बोला। अपने ही आदमी हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं। तारिक ने यह कहते हुए ड्राइवर पर राइफल तान ली। कोई आवाज तुम्हारे मुंह से निकली तो हमेशा के लिए खामोश कर दिए जाओगे। तथा तुम कौन हो? ड्राइवर हकलाया। उसका चेहरा धुआं हो गया था। तुम्हारा बाप, तारिक ने गुराते हुए कहा। खामोश खड़े रहो। बाहर कदमों की आवाज के साथ खुश्क पत्तों के चरचराने की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। कोई दबे कदमों चलने की कोशिश कर रहा था और जमीन पर बिखरे हुए खुश्क पत्ते पैरों के नीचे आकर चरचरा रहे थे। चंद सेकंड बाद एक आदमी दालान में दाखिल हुआ। वो अली था। उसके पीछे ही साइद भी अंदर दाखिल हुआ था। गुड, अली तारिक और नीलम की तरफ देखते हुए बोला। सईद, यहां से कोई रस्सी तलाश करके इसे बांध दो, तारिक बोला। रस्सी जल्द ही मिल गई। ड्राइवर को बांध कर एक तरफ डाल दिया गया। उसके मुंह में भी कपड़ा ठोंस दिया गया। नीलम तुम यहीं रहो और सईद तुम बाहर जाकर गैराज से सेठ की गाड़ी निकाल कर बरामदे में ले आओ, तारिक ने कहा और अली को इशारा करते हुए एक कमरे की तरफ बढ़ गया। उस वसी और रीज कोठी में कई कमरे थे। आखिरकार सेठ सुंदर मल्होत्रा एक कमरे में मिल गया। ये बहुत ही शानदार बेडरूम था। सेठ सुंदर मल्होत्रा का चेहरा बड़ा पुरस्कार लग रहा था। तारिक ने तेजी से रोशनी का बल्ब जला दिया और सेठ की तरफ राइफल तान कर खड़ा हो गया। उसके साथ ही उसने अली को इशारा किया। अली ने आगे बढ़कर सेठ के ऊपर से लिहाफ खींच लिया। सेठ मल्होत्रा हड़बड़ा कर उठ गया। पहले तो वो कुछ नहीं समझ सका, लेकिन जब मौत के 2 फरिश्तों को अपने सामने खड़े देखा तो उसकी नींद गायब हो गई और चेहरे पर एकदम मुर्दनी सी छा गई। कौन हो तुम लोग और अंदर कैसे दाखिल हुए? सेठ हकलाया। खौफ से उसका जिस्म होले होले कांपने लगा था। मौत के फरिश्तों को अंदर आने से कोई नहीं रोक सकता। तारिक और आया। तथा तुम लोग क्या चाहते हो? दौलत ले लो, मेरी सारी दौलत ले लो और यहां से चले जाओ। तथा तिजोरी वो सामने है, चाबी मैं देता हूं। सेठ ने कांपता हुआ हाथ तकिया के नीचे डाल दिया। तारिक की तेज नजरों ने तकिया के नीचे पिस्तौल का दस्ता झांकता हुआ देख लिया था। उसने आगे बढ़कर राइफल का बट पूरी कुव्वत से सेठ के जबड़े पर रसीद कर दिया। सेठ के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। आराम से बैठे रहो, चाबी मैं खुद ले लेता हूं। तारिक ने आगे बढ़कर तकिए के नीचे से पिस्तौल निकाल लिया। चाबियों का गुच्छा भी तकिए के नीचे ही था। ये चाबियां उठाओ और तिजोरी खोलो। इस मर्तबा कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो खोपड़ी तोड़ दूंगा। सेठ मल्होत्रा पलंग से उतर कर दीवार के करीब इस्तादा कद आदम तिजोरी के पास चला गया।
اس کی ٹانگیں बुरी तरह कांप रही थी। उसने कांपते हाथों से बड़ी मुश्किल से तिजोरी खोली थी। तारिक ने उसे धक्का देकर पीछे हटा दिया और तिजोरी में झांकने लगा। तिजोरी में करेंसी नोटों की गड्डियां बड़े सलीके से सजी हुई थी। 2 खानों में जेवरात के डब्बे रखे हुए थे। एक खाने में कुछ बही खाते और फाइलें रखी हुई थी। तारिक ने बिस्तर की चादर उतार कर तिजोरी के सामने फर्श पर बिछा दी और तिजोरी की एक एक चीज निकाल कर चादर में डाल दी। फाइलें और बही खाते भी तिजोरी से चादर पर मुंतकिल हो चुके थे। तिजोरी से बरामद होने वाली रकम लाखों रुपए थी और जेवरात भी लाखों की मालियत के थे। ये वो दौलत थी जो गरीब कश्मीरियों का खून चूस कर जमा की गई थी। तारिक ने चादर की गठड़ी बांध ली और अली को इशारा किया। चलिए सेठ साहिब। अली ने सेठ को दरवाजे की तरफ धक्का दिया। कहाँ? सेठ हकलाया। मेरी सारी दौलत तो तुमने ले ली, मगर मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तुम्हारा क्रियाक्रम करने के लिए, अली बोला। रहम करो मुझ पर, भगवान के लिए रहम करो। सेठ गगयाया। तुमने आज तक किसी पर रहम किया है जो आज रहम की भीख मांग रहे हो? चलो आगे बढ़ो। तारिक ने उसे एक जोरदार ठोकर रसीद कर दी। सेठ ठोकर खा कर गिर पड़ा। तारिक ने उसे एक और ठोकर मार दी। वो सेठ को उसी तरह ठोकरें मारते हुए ड्राइंग रूम में ले आए, जहां सेठ का ड्राइवर बंधा पड़ा था और नीलम इत्मीनान से सोफे पर बैठी हुई थी। अली और नीलम सेठ सुंदर मल्होत्रा को लेकर बाहर चले गए। तारिक ने पुलिस यूनिफॉर्म के नीचे अपनी कमीज की जेब में हाथ डालकर माचिस निकाल ली और ड्राइंग रूम में 2-3 जगहों पर आग लगा दी। सोफों के कुशन्स और पर्दों ने फौरन ही आग पकड़ ली। तारिक बाहर की तरफ दौड़ा। बरामदे में गाड़ी खड़ी थी। साइड स्टीयरिंग के सामने बैठा था। उसके साथ दूसरी सीट पर अली था। पिछली सीट पर सेठ के साथ नीलम बैठी हुई थी। उसके हाथ में सेठ वाला पिस्तौल था। तारिक सेठ के दूसरी तरफ बैठ गया और गाड़ी हरकत में आ गई। गेट के करीब पहुंचकर अली ने नीचे उतरकर गेट खोल दिया। गाड़ी के बाहर निकलते ही उसने गेट बंद कर दिया और दौड़ता हुआ गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी तेज रफ्तारी से एक तरफ दौड़ने लगी। तारिक ने पीछे मुड़कर देखा, सेठ के बंगले से शोले उठना शुरू हो गए थे। कार तेज रफ्तारी से मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ने लगी और फिर कार जैसे ही एक गली से निकलकर बंद रोड पर पहुंची, सामने से पुलिस की एक मोबाइल वैन आती हुई दिखाई दी। सामने से पुलिस की गाड़ी आ रही है। साइद ने कार की रफ्तार कम करते हुए कहा, मेरी बात गौर से सुनो सेठ, तुम इस वक्त किसी मिनिस्टर से मिलने जा रहे हो। किसी भी मिनिस्टर का नाम ले लेना, हम तुम्हारे मुहाफिज हैं और अगर तुमने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। मेरी बात समझ रहे हो ना? समझ गया महाराज, सेठ खौफजदा लहजे में बोला। लेकिन तुम लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हो? चांदनी रात में जरा तफरीह को दिल चाह रहा था। दरिया के किनारे पिकनिक मनाने जा रहे हैं। अपने पहलू में बैठी हुई इस लोंडिया को देख रहे हो? ये तुम्हारा दिल खुश कर देगी। बस अब अपनी चोंच बंद रखो। पुलिस की वैन रास्ता रोक कर सड़क के वस्त में रुक गई है, साइद ने कहते हुए गाड़ी की रफ्तार मजीद कम कर दी। पुलिस की वैन सड़क के वस्त में इस तरह रुक गई थी कि तमाम रास्ता ब्लॉक होकर रह गया था। 4 पुलिस वाले वैन से कूद कर सड़क पर आ गए थे। उन सब के हाथों में ऑटोमेटिक राइफलें थी और एक कांस्टेबल उन्हें रुकने का इशारा कर रहा था। गाड़ी वैन से चंद गज के फासले पर रुक गई। मुसल्ला पुलिस वाले ने उसे घेरे में ले लिया। वैन में बैठा हुआ पुलिस पार्टी का इंचार्ज उतरकर ड्राइविंग साइड पर गाड़ी के करीब आ गया। उसके हाथ में रिवॉल्वर था। कौन हो तुम लोग? नीचे उतरो, तुम लोगों की तलाशी ली जाएगी। पुलिस इंस्पेक्टर ने सईद को घूरते हुए कहा। यह सेठ सुंदर मल्होत्रा की गाड़ी है इंस्पेक्टर, सईद ने बेखौफी का मुजाहिरा करते हुए कहा। सेठ साहिब पिछली सीट पर बैठे हैं, उनसे बात कर लो। इंस्पेक्टर ने पिछली सीट पर झांका और फिर सेठ की सूरत देखते ही बोला, अरे सेठ साहिब, आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? अरे भाई, मिनिस्टर साहिब ने बुलाया है, कोई अहम मसला होगा। ये मेरे बॉडीगार्ड हैं, इनकी तलाशी क्यों मांगते हो? सेठ ने कहा। अब इसकी जरूरत नहीं सेठ जी, लेकिन ये। इंस्पेक्टर ने नीलम की तरफ देखा, फिर एकदम सीधा हो गया। ओ, उस तरफ शोले उठ रहे हैं, शायद कहीं आग लगी है। आप जाइए सेठ जी। विक्रम, वैन में बैठो, हरी अप। तमाम पुलिस वाले वैन में बैठ गए और फिर इंस्पेक्टर के बैठते ही वैन हरकत में आ गई। वैन के सड़क से हटते ही सईद ने भी गाड़ी आगे बढ़ा दी। तकरीबन 2 फरलांग का फासला तय करने के बाद उसने गाड़ी सड़क से उतार कर दरख्तों में रोक ली और वो सब लोग गाड़ी से उतरकर सड़क पार करके दरिया के किनारे आ गए। सेठ मल्होत्रा को उन लोगों ने नरगे में ले रखा था। दरिया खासी गहराई में था।
नीचे जाने के लिए पत्थर की सीढ़ियां बनी हुई थी और सीढ़ियों के इख्तिताम पर पानी में 3-4 कश्तियां खड़ी थी। तमाम कश्तियां रस्सियों से किनारे पर लगी हुई पाइप की रेलिंग से बंधी हुई थी। दरिया के दोनों किनारों पर इस किस्म के छोटे छोटे लातादाद घाट थे। शहर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक आमदोरफ्त के लिए अगरचे दरिया पर 7 पुल बने हुए थे, लेकिन अक्सर लोग इन जगहों से भी कश्तियों के जरिए दरिया पार करते थे। वो लोग पानी के करीब आखिरी सीढ़ी पर आकर रुक गए। यहाँ गहरी तारीकी थी। उस वक्त रात का 1:30 बजा था। अली दाएं बाएं देखने लगा। तारीकी में करीब खड़ी हुई कश्तियों के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। अली ने 2-3 मरतबा मुंह से बिल्ली की आवाज निकाली। उसके खामोश होते ही दाईं तरफ से भी बिल्ली की आवाज सुनाई दी। आओ, वो लोग उधर हैं, अली कहते हुए दाईं तरफ चलने लगा। उमूदी ढलान पर पानी की सतह से तकरीबन 1 फुट ऊपर कंक्रीट का 2-3 फुट चौड़ा प्लेटफॉर्म सा बना हुआ था। वो लोग कतार में उस प्लेटफॉर्म पर चलने लगे। सेठ मल्होत्रा की टांगें कांप रही थी। सईद ने उसकी पुश्त से राइफल की नाल लगा रखी थी और वह लड़खड़ाते हुए चल रहा था। तकरीबन 20 गज आगे हाजी उस्मान और हाशिम खड़े थे। उनके करीब ही पानी में एक कश्ती भी मौजूद थी। वो लोग कश्ती में बैठ गए। हाजी उस्मान और हाशिम ने चप्पू संभाल लिए। कश्ती आहिस्ता आहिस्ता किनारे से दूर हटने लगी। हाशिम और हाजी उस्मान अगरचे बड़ी एहतियात से चप्पू चला रहे थे, लेकिन सन्नाटे में शराब शराब की आवाज दूर दूर तक फैल रही थी। तकरीबन 1 फरलांग का फासला तय करने के बाद कश्ती दूसरे किनारे पर आ गई। जिस जगह कश्ती रुकी वहां भी ऐसा ही एक छोटा सा घाट था और ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। वो लोग सीढ़ियां चढ़कर सड़क पर आ गए। सड़क उबूर करते ही वो लोग कुशादा गली में घुस गए। 2-3 गलियां घूमने के बाद वो एक टीले पर बनी हुई छोटी सी मस्जिद के सामने पहुंच गए। मस्जिद के साथ ही एक छोटी सी दरगाह थी, जिसके गुंबद पर सब्ज रंग के झंडे लगे हुए थे और एक बल्ब भी जल रहा था। वो लोग दरगाह में दाखिल होकर एक तंग से हुजरे में घुस गए। फर्श पर दरी बिछी हुई थी। हाशिम ने दरी का एक कोना उठा दिया और फिर अली की मदद से फर्श पर 3 मुरब्बा फुट की सीमेंट की एक सल उठा दी। नीचे तहखाने में जाने वाली सीढ़ियां थी। वो एक एक करके सीढ़ियों पर उतरने लगे। आखिर में एक आदमी रह गया था। वो उस दरगाह का मुजावर था। उसने सीमेंट की सल को उसकी जगह पर रख कर बराबर कर दिया और हुजरे से निकल आया। सीढ़ियों का अख्ताम एक छोटे से कमरे पर हुआ। उससे आगे एक और बहुत बड़ा हाल नुमा कमरा था, जिसमें तेज रोशनी का बल्ब जल रहा था। फर्श पर दरी बिछी हुई थी और एक दीवार से टेक लगाए रहमान बाबा बैठा हुआ था। उसके साथ एक आदमी और भी था। उसी कमरे में एक तरफ लकड़ी की पेटियों का अंबार लगा हुआ था। उन पेटियों में दस्ती बम, ऑटोमेटिक राइफलें, मैगजीन और मुख्तलिफ किस्म का असलहा भरा हुआ था। अली ने नीलम के हाथ से गठड़ी लेकर रहमान बाबा के करीब रख दी और सेठ सुंदर मल्होत्रा को धक्का दिया और वो लड़खड़ा कर रहमान बाबा के सामने गिर गया। सुंदर मल्होत्रा ने अभी तक रहमान बाबा को नहीं देखा था। उठने की कोशिश करते हुए उसने रहमान बाबा की तरफ देखा। रहमान बाबा के चेहरे पर निगाह पड़ते ही उसकी आंखें खौफ की शिद्दत से फैलती चली गई। रहमान बाबा, सेठ सुंदर मल्होत्रा के मुंह से निकला और वो झूमता हुआ एक बार फिर ढेर हो गया। होश आने के बाद सेठ मल्होत्रा खौफ से थर थर कांप रहा था। रहमान बाबा के चेहरे पर उसे अपनी मौत का पैगाम लिखा हुआ नजर आ रहा था और इसीलिए वो रहमान बाबा से नजरें चुराने की कोशिश कर रहा था। रहमान बाबा के सामने वो गठड़ी खुली पड़ी थी, जिसमें लाखों की नकदी और जेवरात के अलावा सेठ सुंदर मल्होत्रा के बही खाते और कुछ फाइलें भी थी। बही खातों में सेठ मल्होत्रा के कारोबार का हिसाब और उन लोगों के नामों पते थे जो सेठ के मकरूज थे। वो सब नाम कश्मीरी मुसलमानों के थे जो सूद तर सूद उसके शिकंजे में जकड़े हुए थे। फाइलों में कारोबारी नोयत के खतूत थे। इसके अलावा कोई खास चीज नहीं मिली थी। तारिक, रहमान बाबा ने तारिक की तरफ देखते हुए कहा, इस बनिए से मालूम करो कि हुकूमत हिंद ने इसे जो मंसूबा दिया है उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। सुना है तुमने? तारिक ने सेठ मल्होत्रा को घूरा। मैं 5 तक गिनूंगा। अगर तुमने जुबान ना खोली तो मैं कुछ नहीं जानता महाराज। सेठ मल्होत्रा ने हाथ जोड़ दिए। वो थर थर कांप रहा था। मैं किसी मंसूबे के बारे में नहीं जानता। मैं तो अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ने के लिए दिल्ली गया हुआ था। देखो सेठ, तारिक बोला, हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं। दिल्ली में तुम्हारे किन किन लोगों से राब्ते हैं ये भी हमारे इल्म में है। तुम्हें कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ वो मंसूबा किसने भेजा था ये भी हम जानते हैं। हम सिर्फ वो नाम जानना चाहते हैं जो इस मंसूबे में शामिल हैं। हमारे बारे में तुम थोड़ा बहुत अंदाजा तो लगा ही चुके हो। तुम्हें तुम्हारे बंगले से उठाने के बाद हमने उस बंगले को नजरे आतिश कर दिया था। उससे अभी तक शोले उठ रहे होंगे।
अगर तुमने मेरी बातों का जवाब ना दिया तो तुम भी जिंदा जला दिए जाओगे। मगर मैं सच कहता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, सेठ मल्होत्रा हकलाया। तारिक ने उसके मुंह पर एक जोरदार घूंसा रसीद कर दिया। सेठ के मुंह से खून बह निकला, उसका एक दांत टूट गया था। वो ज़िबा होते हुए बकरे की तरह बुलबुलाने लगा। ये ऐसे नहीं मानेगा, तारिक बोला। अली, प्लास लेकर आओ। पहले इसके हाथों और पैरों के नाखून उखाड़ूंगा, फिर इसकी खाल खींचूंगा। अली ने लकड़ी की पेटियों के करीब पड़ा हुआ प्लास उठाकर तारिक के हाथ में थमा दिया। ठहरो, बताता हूँ, सेठ मल्होत्रा चीखा। वो चंद लम्हे खामोश रहा और फिर रुक रुक कर उन लोगों के नाम बताने लगा जो उस मंसूबे में शामिल थे। मंसूबा ये था कि वो लोग सादा लोग कश्मीरियों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने और उनके दिलों में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत पैदा करने की मुहिम चलाएंगे। मासूम कश्मीरियों के दिलों में ये बात बिठानी थी कि पाकिस्तान और कश्मीर मुजाहिदीन उनके हमदर्द नहीं हैं। उन पर यह मुसीबतें मुजाहिदीन और पाकिस्तान की वजह से ही नाजिल हो रही हैं। अगर वो उनकी हिमायत तर्क कर दें तो उन्हें इस मुसाइब से निजात मिल सकती है। सेठ मल्होत्रा ने जिन लोगों के नाम बताए थे उनमें चंद नाम निहाद सियासतदान भी शामिल थे। और दूसरा मंसूबा क्या है? तारिक ने पूछा। दूसरा मंसूबा? सेठ मल्होत्रा ने हैरत का मुजाहरा किया। मैं किसी और मंसूबे के बारे में कुछ नहीं जानता, मैं दहशतगर्दी और तखरीबकारी वाले मंसूबे के बारे में पूछ रहा हूँ। तारिक ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। अगर तुमने जुबान ना खोली तो प्लास अब भी मेरे हाथ में मौजूद है। नहीं, वो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सेठ मल्होत्रा थर थर कांपने लगा। जिंदा तो तुम्हें हम भी नहीं छोड़ेंगे। तारिक प्लास को हरकत देते हुए उसकी तरफ बढ़ा। अली और हाशिम ने लपक कर सेठ को दबोच लिया। तारिक ने सेठ के दाएं हाथ के अंगूठे का नाखून प्लास में कस लिया और जोर जोर से झटके देने लगा। सेठ मल्होत्रा की चीखें तय खाने में गूंज रही थी, मगर तारिक ने हाथ नहीं रोका। उसके चेहरे पर दरिंदगी थी। उस वक्त मूसा की तस्वीर उसकी आंखों के सामने घूम गई, जिसे वो सोपूर के कैंप से छुड़ा कर लाया था। उसके हाथों और पैरों के नाखून भी इसी तरह उखाड़े गए थे। उसने चंद और झटके दिए। सेठ मल्होत्रा का नाखून जड़ से उखड़ गया और अंगूठे से खून का फवारा बह निकला। सेठ मल्होत्रा बेहोश हो चुका था। चंद मिनट बाद उसे होश में लाया गया। हमारे नौजवानों को तुम्हारे बहादुर सैनिक इससे भी ज्यादा खौफनाक अजियतें देते हैं। तारिक सेठ की तरफ देखते हुए गुर्राया। अभी तुम्हारा सिर्फ एक नाखून उखड़ा है। अगर तुमने जुबान ना खोली तो हाथों पैरों की सारी उंगलियों के नाखून इसी तरह उधेड़ दिए जाएंगे। बब बताता हूँ, सेठ मल्होत्रा हकलाया और फिर चंद लम्हों के बाद उसकी जुबान कैंची की तरह चलने लगी। हाशिम, सेठ के खामोश होने पर रहमान ने कहा, सुबह होने से पहले पहले इसके जिस्म के साथ वजनी पत्थर बांध कर इसे दरिया में फेंक दो। नहीं, सेठ चीखा, मुझ पर रहम कीजिए महाराज। हाशिम ने आगे बढ़कर उसे दबोच लिया। मुंह में कपड़ा ठोंस कर उसके हाथ पैर बांध दिए गए और फिर रात के आखिरी पहर उसके साथ एक भारी पत्थर बांधकर उसे दरिया में फेंक दिया गया। सेठ सुंदर मल्होत्रा से हासिल होने वाली मालूमात गलत नहीं थी। बाज दीगर ज़राए से भी इस बात की तस्दीक हो गई थी कि करीब 200 ऐसे भारतीय एजेंट वादी कश्मीर में दाखिल होने वाले थे, जिन्हें इसराइली इंटेलिजेंस मोसाद और भारतीय इंटेलिजेंस रा ने दहशतगर्दी और तखरीबकारी की खुसूसी तरबियत दी थी।